Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you SPCC. So, students, today we are here to see Standard 12th, Chapter number 2, Correspondence with Government Department, Public Utility and Local Institution from Part 1. As you all know, already we have seen one part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter. So students, let us move on with a short summarization of the topic that we have seen on the previous video. So previously we have discussed about the introduction and the correspondence with the government department of a business firm. So how they do the particular format, and two examples of that we have seen in a very detailed manner. So let us have a brief discussion on that. On introduction, we have seen that as a business firm, on day-to-day life, they have to have the correspondence with the government department, public utility and the local institution for developing their business. But in what manner the effective portion of the correspondence can be done? For that purpose, the effective portion, or we can say that the format or the effectiveness of writing that letter is most importantly known by the business firm. That's why here the three category of that correspondence has been done. The first category is correspondence with the government department. Second, it is correspondence with the public utility. Third, it is the correspondence with the local institution. So in this way, the three classification of the correspondence with the common departments that the government or the portion of the public utility that a business firm has to maintain to solve up its various problems, that portion is being covered up in this chapter. So how important is that we have seen in the introduction. Next, we have seen about the correspondence of or correspondence with the government department. So common people, if you are taking you individual or a business firm, day-to-day life they have to solve up their current issues related to the government department. They have to do the correspondence with the government department. For example, for complaint of the road service or the telephone service or the postal service, these all are the government department. So if they have any issues or problem or any request to make them, then they have to do the correspondence for that purpose in this manner. So that's why as a business firm, if you are talking the day-to-day life in various issues, they have to do the correspondence with 5 government department usually. First, it is the consideration of the post and parcel services. Second, it is the telephonic portion. And third, if you are seeing the sales tax and the income tax department. Fourth, if you are seeing the custom and the excise duty in a very detailed manner. Then the railway parcel department. So these 5 departments are being usually corresponded with the business firm. As a business firm, they have to have the day-to-day life correspondence with this portion for developing or expanding or running their business smoothly. So in that portion, we have seen few examples of such correspondence. In that first example, we saw that was of the Bhagwati trader, those who had a complaint with the postal department as they were not receiving the post on a particular time or the regularity. So due to that, they have to make a complaint to the respected postal department. In that, we have seen that the name of the organization was written in center, and on the left and right side, if you are seeing in the portion, there was been mentioned of the phone number and email address and the address of the particular office or the Bhagwati trader. After that, one line we have to leave, then we have to mention of the date. After mentioning the date, again one line we have to leave, and after that the inside address to whom we are sending, that address must be mentioned up. Then again you have to leave one line and write the subject. In subject you can write that the irregularity of the services provided by the postal office. Then after again one line you have to leave, then you have to write sir, the salutation, then leaving one line, the main body of
of the letter has been started. In the letter, first of all, they appreciated that from many years they are getting the services of the postal department, and due to that only they can be able to run the business very smoothly. Then they complained that nowadays, from past few days, the irregularity of the postal services has been seen to their business firm. So due to that, what happened, that effect that affected the business that was being mentioned up. In that, they have said that due to that they are not able to receive the timely the portion of the postal service products, and due to that they are not able to make the decision on the time, and due to that portion the delay of the decision has been seen up, and as a result the reputation and the reliability of the business firm has been getting down before the people. So as a portion, they are asking the postal department to have a prompt reply and feedback for this portion, and then they are doing the closure. After completing this portion, one line is left, and then your faithfully closure, and then signature of the person who is writing. In that, Vishwas Soni has written, and then his name and the designation as a business partner, he has written the letter. Then the margin has been closed up. So in this manner you can write the letter in a very proper format with the government department. Second, we have seen the letter of a request to the telephone department regarding the detailized bill of the STD calls made by the number. So in this we have seen the Jagruti Shikshan Sankul, means it is a school. It has requested that they have been having two numbers in the same complex, and it was been given the facility of the STD call. So they want a detailized bill regarding how many STD calls are made and in which number. That detailized bill they want from the telephonic department. So as usual, in between the school's name, left and right side, the email and post address and the address of the school, and then leaving one line the date comes, and again leaving one line the inside address, then leaving one line subject, again one line we have to leave and give the salutation. After the salutation, leaving one line, the paragraph starts up. In the same manner here, the first appreciation that for many years the telephonic department is giving the good services to them. Even they have been using two numbers in the complex regarding the phone of that particular telephonic connection, and as now they are mentioning the number, and they are telling that on this phone number the outstation calling, Miss STD call has been also been given to them, but now they want the detailized bill for that two number as per the administrative portion, the routine. They need this portion to we can say that file up in the account department. So they are asking and they are telling that humbly they request the telephonic department to provide the detail, and they are putting the thanks as a courtesy, and after that as usual the closure, your thankfully, and then the sign Motibai Chaudhary, and who is his full name, and who is he, the chief administrative from the account department, we can say that. So in this manner the letter is being completed. So in this manner we have seen the detailed portion of the letter. So today we are going to see the further portion of the letter in the further video. So let us move on with the line to line explanation of the letter in the further video from the chapters PDF. So students, let us move on with the today's portion in a very detailed manner. As you all know, last time we have seen up to the chapter number, or we can say the letter number 2. So today we are going to see from the letter number 3. So I'm going to read it out, listen it out carefully. Draft a request letter to the telephonic company to obtain a parcel connection on the same telephonic number. So if you are seeing, as usual, here it is a request letter to the telephonic company to obtain a parallel connection, means the same on the same telephone number you want an another connection. ठीक है, उसी नंबर पे दूसरा एक कनेक्शन आपको चाहिए. So for that you are going to ask the portion of the request letter is being seen up here. So let us have and see that portion in a very detailed manner. First of all, as usual, you have to make the margin. After making the margin, if you are seeing, you have to put the business name. So the business name is Sharathi Business Out. But if you are seeing this time on this portion, the address is not written. The address is written in the between. So now the question comes कि अगर आप बीच में एड्रेस लिखते हो तो क्या वो सही है या गलत है. So it is right. Okay, उसमें कोई मार्क्स कट नहीं होते. So बिजनेस का एड्रेस है GIDC रोड वापी 396191.
After that portion you can see that phone number and email address is been given up. So phone number और email portion mention up किया है. Then you can see that one line is left. एक line leave करने के बाद जो है 2 September 2017 डेट लिखा गया है. After the date again you can see that one line is leaven up. So इस तरीके से सबसे पहले मार्जिन बनाना है, बिजनेस का नाम लिखना है, उसका फिर एड्रेस लिखना है, फिर फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर के बाद एक लाइन छोड़ते हुए डेट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ते हुए इनसाइड एड्रेस के लिए जाना है. बट यहाँ पे एक चीज़ अगर नोट की होगी, इवन एड्रेस के बाद यानी कि जो सेंडर का एड्रेस है उसके बाद भी एक लाइन छोड़ा गया है. अभी तक हमने कितना लाइन छोड़ा है? तो 1 2 3 लाइन छोड़ा है. कहाँ कहाँ छोड़ा है? आफ्टर द बिजनेस एड्रेस फ़ोन नंबर के पहले हमने छोड़ा है, फ़ोन नंबर के बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखा है, फिर एक लाइन छोड़ के हम एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिसर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनका फ़ोन नंबर यानी उनकी इनसाइड एड्रेस के पहले एक लाइन हमने छोड़ा है. सो यहाँ तक का पोर्शन डिटेल में समझ में आया होगा. आई होप दैट. सो लेट्स मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन. ठीक है, फर्दर ही क्या दिया गया है. सो फर्दर पोर्शन में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस के बारे में डिटेयली दिया गया है. सो अगेन आई एम गोइंग टू इंडिकेट दैट, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे एक लाइन हमें छोड़ना है. आफ्टर लिविंग दैट पोर्शन हमें इनसाइड एड्रेस लिखना है. सो इनसाइड एड्रेस मतलब जिसे हम भेज रहे हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर BSNL सूरत रोड वापी 396191. वो लिखने के बाद इनसाइड एड्रेस लिखने के बाद अगेन वन लाइन वी हैव टू लीव. वो लाइन लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है. व्हाट इज अवर सब्जेक्ट? टू ऑब्टेन अ पैरेलल कनेक्शन ऑन द सेम टेलीफोन नंबर. ऑलरेडी अभी हमारे पास जो टेलीफोन नंबर है उसी का एक पैरेलल कनेक्शन हमें चाहिए. आफ्टर दैट अगेन वंस अगेन हमें एक लाइन छोड़ना है. सो अभी तक हमने कितना लाइन छोड़ा है? डेट के बाद हमने 2 लाइन छोड़ा है, क्योंकि डेट के बाद वाला 1 लाइन जो हमने आगे ही डिस्कस किया. सो उसके बाद हमें इनसाइड एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर एक लाइन हमें छोड़ना है. इट मीन्स अभी तक हमने 1 2 3 4 5 लाइन ब्लैंक लाइन इन बिटवीन छोड़ा है. आफ्टर दैट हमें सैल्यूटेशन देना है डियर सर का. देन अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन. सो ऑलमोस्ट हमने अभी तक जो है 4 and 2 6 लाइन लीव अप किया है. सो रिमेंबर हमें पैराग्राफ शुरू करने के पहले 6 लाइन छोड़ना है. अगर हम एड्रेस इन बिटवीन लिखते हैं, अगर साइड में भी लिखते हैं तो नाम के बाद एक लाइन आप छोड़ सकते हो जिसका आपको मार्क कट नहीं होगा, जिससे एक बैलेंस्ड लुक आता है, इसीलिए ये लाइन छोड़ा जाता है. सो नेक्स्ट पोर्शन क्या है? लेट अस सी दैट. सो अब मेन बॉडी आ रहा है. So what is the main body of the letter? So main body, I am going to read it out, listen it out carefully. Sharti Business House is a reputed business unit in Vapi. Our unit situated on GIDC road is divided into 2 divisions. One is administrative department and other is production department. The employee of both the department have to communicate with one another regularly on telephone. At present we have telephone connection at the Sarathi Business House bearing telephone number 266551. We desire to get the facility of one more than one parallel connection on this number. This would make our business dealing through telephone faster and easier. We request you to inform us the procedure required for getting the above mentioned facility. Please let us know if we have to pay extra for this additional facility. So after that, thanks, your faithfully Dheeraj Tandon, manager. So यहाँ पे if you are seeing after the sir के बाद हमें क्या करना है? तो एक लाइन हमें छोड़ना है. आफ्टर सर हमें एक लाइन छोड़ना है. सैल्यूटेशन के बाद हमें पैराग्राफ शुरू करना है. एज वी सॉ ऑन द लास्ट पोर्शन, हर एक पैराग्राफ का कंटिन्यूटी एक ही सेंटर ऑफ ओरिएंटेशन में देखा जाता है. सो लेटर में अगर आप देखो, सो लेटर में ये लिखा गया है कि सारथी बिजनेस हाउस एक रेप्यूटेड बिजनेस यूनिट है वापी के अंदर, जो GICT रोड पे है, और अब उसको 2 डिवीजन में देखा जा रहा है. एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो
देखरेख सारी चीज़ों को रखता है, और दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब जो एम्प्लॉय है दोनों के, कहीं ना कहीं ये दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है रेगुलरली टेलीफोन के अंदर, ताकि बिजनेस के रिलेटेड डिसीजंस और उसके फॉरवर्ड के रिलेटेड वो बात कर पाए। सो एट प्रेजेंट उनके पास एक टेलीफोनिक कनेक्शन देखा जा रहा है। सारथी बिजनेस हाउस ऑलरेडी उनके पास एक टेलीफोन नंबर है 2666266551। अब उन्हें एक डिज़ायर यानी उनकी एक इच्छा है कि उनको उससे ज़्यादा एक फैसिलिटी नंबर का चाहिए, बट वन पैरेलल कनेक्शन करे। पैरेलल कनेक्शन मतलब इसी नंबर पे दूसरा कनेक्शन चाहिए। तो ये चाहते हैं कि उनकी सारी बिजनेस डीलिंग फ़ोन के थ्रू हो रहा है, वो फास्टर और ईजियर वे पे हो पाए, इसीलिए वो रिक्वेस्ट करते हैं और इवन उनको ये बोल रहे हैं कि टेलीफोन डिपार्टमेंट को हमें इसी नंबर पे एक पैरेलल कनेक्शन चाहिए। इसीलिए अगर उसका कोई भी प्रोसीजर आगे जो प्रोसीजर होगा, जैसे कोई फॉर्म फिलअप करना है या उसके रिलेटेड कोई पैसा देना है या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है, तो वो उस फैसिलिटी के लिए अबाउ जो मेंशन किया है उस फैसिलिटी के लिए वो जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा वो करने के लिए रेडी है। इवन एक्स्ट्रा पे करना है तो उसके लिए भी रेडी है। इस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट होता है। Once the paragraph is been completed, you can see that उसके बाद again one line you have to leave. After leaving one line हमें courtesy देना है thanks का। Once you thanks का courtesy देने के बाद एज यूजुअल आपको पता है आपको क्या करना पड़ता है। थैंक्स के पहले एक लाइन लीव किया गया था, थैंक्स के बाद एक लाइन लीव करके आपको योर फेथफुली का क्लोजिंग कर्टसी देना है। क्लोजिंग कर्टसी के बाद आपका साइन और नाम। तो यहाँ पे किसने साइन किया है, तो धीरज के टंडन। सो धीरज के टंडन कौन है, सो धीरज के टंडन हम बोल सकते हैं इसके मैनेजर है। सो उसका डेजिग्नेशन भी लिखा गया है। फिर उसके बाद ये मार्जिन जो है क्लोज कर दिया जा रहा है। यहाँ पे खत्म होता है लेटर नंबर 3। सो अब ये पोर्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप दैट। सो लेट अस मूव ऑन विद द फर्दर पोर्शन ऑफ द लेटर नंबर 4. सो रिक्वेस्ट लेटर टू कैंसल डिमांड नोटिस एज इनकम इज नॉट टैक्सेबल। सो एक ये रिक्वेस्ट लेटर है डिमांड नोटिस को कैंसल करने का, क्योंकि उनका जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है। सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ों को अब ब्रीफ में अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन करना पड़े, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट पे ये चीज़ें बोल दे रही हूँ। सबसे पहले मार्जिन बनाना है, इन बिटवीन आपको जो है दुकान का नाम डम डम बुक स्टोर, उसके बाद आपको उसका एड्रेस लिखना है GS2 सरस्वती कॉम्प्लेक्स गांधीनगर। सो इन बिटवीन ये सारी पोर्शन करने के बाद आपको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, बट एक लाइन छोड़ते हुए, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर के बाद सेकेंड लाइन यानी एक लाइन छोड़ना है, तो बट यहाँ पे एक लाइन को मैं नंबर 2 मेंशन करी तो ताकि कितना लाइन आपको छोड़ना है आपको पता चले। उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है 20 सितंबर 2017 और 18 जो लिखा गया। उसके बाद अगेन आपको 1 लाइन छोड़ना है जो कि 3rd लाइन है, ठीक है। अब आपको इनसाइड एड्रेस लिखना है। सो इनसाइड एड्रेस के लिए इफ़ यू सी, सो आपको नॉर्मली इनसाइड एड्रेस पे इनकम टैक्स ऑफिसर बिजनेस सर्कल गांधीनगर इस तरीके से लेटर लिखा गया है। एस यहाँ पे एक और लाइन जो 3rd नंबर का लाइन छोड़ा गया था, उसके बाद आपने इनसाइड एड्रेस मेंशन किया। इनसाइड एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है जो कि 4th लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ द डिमांड नोटिस। देन अगेन 1 लाइन यू हैव टू लीव जो 5th लाइन है। 5th लाइन के बाद आपको क्या करना है, तो सर जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन के साथ आपको जो है पोर्शन स्टार्टअप करना है। सो सैल्यूटेशन के बाद एज यूजुअल आपका पैराग्राफ शुरू होता है। सो पैराग्राफ आई एम गोइंग टू रीड इट अप, जिसे हम को जो है मेन बॉडी कहते हैं। आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली। फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन इन द बिजनेस इन गांधीनगर अंडर द नेम ऑफ डम डम बुक स्टोर्स. As per the income tax rule, every year we file income tax return. Our PAN number is AEHPM 0570D.
We have been served with a demand notice on 2nd July 2016 regarding an amount of 7,600 payable as income tax for the assessment year 2015 and 16. It seems that the notice has been issued to us by mistake. Our income in the last financial year is less than that in the previous year, so it is quite natural the amount of the income tax payable for that period is less. Keeping in mind the income tax of the last financial year, we do not have to pay any additional income tax. I attach a copy of income tax return filed by me with the income tax department for reference. We request you to check the income tax return and detail filed us by and cancel the notice promptly. Your faithfully Harsh Patel, ओनर, एनक्लोजर कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न. सो सर के बाद एक लाइन लीव करते हुए एज यूजुअल आपको याद रखना है कि हम जो भी पोर्शन लिखते हैं लेटर का जितना पैराग्राफ हो उसे एक ही लाइन में होना चाहिए. सो ये पोर्शन समझने के बाद व्हाट इज गिवन इन द लेटर. सो लास्ट 10 ईयर से ये जो बिजनेस है यानी गांधीनगर में डम बुक स्टोर नाम का एक स्टोर 10 साल से चलता आ रहा है और एज पर इनकम टैक्स रूल ये दुकान के जो ओनर है वो एवरी ईयर यानी हर साल इनकम टैक्स भी पे कर रहे. उनका पान नंबर जो है AEHPM 0570D है, वो बताया गया है क्योंकि इनकम टैक्स पान कार्ड से ही पे किया जाता है. इवन वो कह रहे हैं कि उनको एक डिमांड नोटिस 2 जुलाई 2016 को भेजा गया है जिसमें इनकम टैक्स 2015 और 16 के बिहाफ में उनको 7,600 पे करने को बोला जा रहा है. जबकि हर्ष पटेल जी ये कह रहे हैं कि ये लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिस्टेक हुई है और गलती से इन्हें नोटिस भेजा गया है. क्यों? क्योंकि इनका जो 2015 और 16 का जो फाइनेंशियल ईयर का इनकम था वो प्रीवियस ईयर से भी कम देखा गया है. सो क्वाइट नेचुरल है कि उनको जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पे करना था उस पीरियड के लिए वो बहुत ही लेस था. ये दिमाग में रखते हुए लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का उन्होंने जो भी इनकम टैक्स पे करना था उन्होंने कर दिया. अब कोई एडिशनल इनकम टैक्स वो उनका पे करने का नहीं रहता है. इसीलिए उन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अप किया लास्ट ईयर उसकी एक जो कॉपी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं ताकि उसको वो रेफर कर पाए और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका इनकम टैक्स रिटर्न को एक बार चेक किया जाए और उन्होंने जो डिटेल फाइल अप किया है इसके साथ उसे भी देख के इस नोटिस को प्रॉम्प्टली यानी जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए. आफ्टर दिस पोर्शन एज यूजुअल तुम्हें एक लाइन छोड़ के मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा. ओके चलो मैं कर ही देती हूँ. तो एक लाइन छोड़ के आपको योर फेथफुली, फिर सिग्नेचर और फिर उन पर्सन का नाम और डेजिग्नेशन. सो इस डेजिग्नेशन की अगर हम बात करते हैं तो ओनर, ठीक है. सो योर फेथफुली हर्ष पटेल ओनर. ये चारों पोर्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक नया पोर्शन दिखता है एंक्लोजर. आपको पता है हम जब भी कोई चीज़ की एंक्लोजमेंट करते हैं यानी कोई भी डॉक्यूमेंट लेटर के साथ भेजते हैं तो हम लेटर के नीचे इसे लिखते हैं कि एंक्लोजर में ये पेज हमने भेजा. क्यों? अगर वो मिसप्लेस भी हो जाए तो लेटर रीडर को पता चले कि इसके साथ ये डिटेल भेजा गया. सो एंक्लोजर में इनकम टैक्स का रिटर्न का एक कॉपी रखा गया है. सो इस तरीके से यहाँ पे लेटर कंप्लीट होता है. फिर हमें ये मार्जिन भी कंप्लीट यानी क्लोज करना है. सो इस पोर्शन में यहाँ पे लेटर नंबर 4 कंप्लीट होता है. सो लेट अस सी द लेटर नंबर 5. लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस. सो एक्सपोर्ट लाइसेंस के लेने के लिए लेटर लिखा जा रहा है एक बिजनेस फर्म के थ्रू. सबसे पहले मार्जिन, उसके बाद हमें बिजनेस का नाम, फिर ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और फ़ोन नंबर तीनों दिया गया है. यहाँ पे एक लाइन लीव किया गया है. एक लाइन लीव करने के बाद यहाँ पे एड्रेस प्लॉट नंबर 70 GIDC Ghada Road and Bhavnagar 364001. After that again one line we have to leave. यहाँ पे एक लाइन लीव किया गया है कॉमनली, ठीक है, दोनों के बीच में. फिर हमने डेट मेंशन किया है 18 सितंबर 2017. देन उसके बाद अगेन एक लाइन लीव किया गया है. फिर इनसाइड एड्रेस लिखा गया है द जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूना
411004। तो यहाँ पे ये पोर्शन कंप्लीट होता है. सो लेट अस सी द फर्दर पोर्शन. अब इनसाइड एड्रेस के बाद एज यूजुअल यहाँ पे एक लाइन लीव किया गया है. फिर जो है सब्जेक्ट लिखा गया है. सब्जेक्ट के बाद अगेन वन लाइन, फिर सैल्यूटेशन, फिर एक लाइन लीव किया गया. सब्जेक्ट में टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस IEC कोड नंबर 1. और सर सैल्यूटेशन के बाद वापस एक लाइन छोड़ के हमें मेन पैराग्राफ यानी कि हमारा बॉडी का जो लेटर है ये बताया जा रहा है. सो लेट अस सी दैट एंड रीड दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. We are a large producer of machine for manufacturing and printing of notebooks and books. For the last 10 years, our machines are sold far and wide in the entire country on a large scale, and its demand is increasing day by day in foreign country too. We wish to sell our machine abroad, and for that we would like to obtain an export license from you. We would like to submit the following detail and request you to issue us an export license to sell our machine abroad. So application number, demand draft, 250 bank certificate as per prescribed format, self-attached copy of PAN card, one photograph of the applicant, ₹50 stamped envelope with company's address, 10 stamp envelope with bank's address and other document. Kindly issue us the export license IEC code number 1 promptly. Thanks, your faithfully Munchal Rupani, owner enclosure as above. So यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये लार्ज नंबर पे मशीन प्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग यानी नोटबुक और बुक्स की प्रिंटिंग के लिए मशीनरीज बना के बेचने का इनका बिजनेस देखा जा रहा है. लास्ट 10 ईयर से इनका जो मशीन्स है कंट्री के एंटायर कंट्री के कॉर्नर में बेचा जाता है. इवन लार्ज स्केल में इनका डिमांड भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और फॉरेन कंट्री के अंदर भी इनकी मशीन्स का डिमांड देखा जाता है. इसीलिए ये इच्छा करते हैं कि इनकी मशीन्स अब्रॉड में भी बेचा जाए. इसीलिए ये एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहते हैं. डिपार्टमेंट कौन से? फॉरेन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से. ठीक है. सो फॉरेन ट्रेड का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से इनको एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए. ऑलरेडी इन्होंने इंक्वायरी कर लिया है. अब ये डायरेक्टली लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो जैसे इनको डिटेल बताया गया उस हिसाब से इनको एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू करवाने के लिए अपनी मशीन्स फॉरेन में सेल करने के लिए जो बोला गया था उसका डिटेल पोर्शन ये सेंड कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो 8 डॉक्यूमेंट का यहाँ लिस्ट लिया गया. ऑलरेडी उनने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया. उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट जो 250 का मांगा गया था वो भी उन्होंने अटैच किया. बैंक की सर्टिफिकेट जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बताया गया था एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो भी इन्होंने ले लिया है. सेल्फ अटैच पान कार्ड यानी इनका पान कार्ड का जेरोक्स लगा के उसमें सेल्फ अटैच इन्होंने खुद किया ये बताया है. फोटोग्राफ एप्लीकेंट का एक, फिर कंपनी एड्रेस में ₹50 का स्टैम्प का एनवलप, फिर बैंक के एड्रेस में ₹10 का स्टैम्प का एनवलप और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अटैच कर दिए. सो ये 8 पोर्शन को मेंशन करने के बाद वो काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस IEC कोड नंबर 1 के हिसाब से प्रॉम्प्टली यानी जल्द से जल्द दिया जाए. फिर वो कर्टसी दे रहे हैं. कर्टसी के बाद एज यूजुअल एक लाइन छोड़ते हुए योर फेथफुली मूलचंद रूपानी उनका साइन. फिर उसके बाद अगर आप देखो तो उनका साइन करने के बाद ओनर उनका डेजिग्नेशन नेम और ओनर उन्होंने मेंशन कर दिया. उसके बाद इफ़ यू आर सीइंग देन यू कैन नो दैट उसके बाद उन्होंने एनक्लोजर भी किया एज अबाव. क्योंकि 8 पोर्शन है इसलिए पूरा का पूरा वो डिटेल में नहीं लिख रहे. एज पोर्शन यानी एज अबाव यानी ऊपर जो 8 चीज़ें उन्होंने लेटर में ही लिखे वही चीज़ उन्होंने एनक्लोज किया. इस तरीके से उन्होंने उसको शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया और इवन मार्जिन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है यानी लेटर राइटिंग भी कंप्लीट हो जाता है. सो इस तरीके से आप एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड करने के लिए आप इस तरीके से लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे.
Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. As you also know, we have seen the further portion of the correspondence with the government example letter in a very detailed manner today. So आज हमने 3 letters cover up किया है. 3 लेटर्स के अंदर हमने अलग अलग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ किस तरीके से हम करस्पॉन्डेंस रख सकते हैं उस टॉपिक के अंदर डिटेल में देखा. फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट कहीं ना कहीं हर एक डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट प्रोबेबली सेम देखा गया. सो मेन जो पोर्शन होता है वो जो होता है मेन बॉडी ऑफ द लेटर. सो फर्स्ट लेटर हमने कहीं ना कहीं डिटेल में देखा कि हमें जब एक एज ए ट्रेडर हमें जब किसी इंसान से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना हो या हमारा कोई डिमांड नोटिस आया इनकम टैक्स के रिलेटेड, उसके रिलेटेड हमें कैसे बात करना है और हमें एक ही नंबर पे पैरेलल दूसरा कनेक्शन लेना है, उसी नंबर पे दूसरा एक कनेक्शन भी चाहिए, तो हमें किस तरीके से बात करना चाहिए ये पोर्शन देखा गया. फर्स्ट हमने पैरेलल कनेक्शन के बारे में डिटेल में देखा जिसके अंदर ऑलरेडी उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखा जाता है. उनके बिजनेस को और स्मूथली रन करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, तो एक ही नंबर का दूसरा पैरेलल एक नंबर यानी कनेक्शन वो मांग रहे थे. इसलिए वो टेलीफोनिक डिपार्टमेंट से इस तरीके से रिक्वेस्ट करते कि काफी साल से उन्हें सर्विसेज तो मिल रहा है बट अब उन्हें पैरेलल सर्विस की जरूरत है. अगर वो उन्हें उस प्रोसीजर को बताए किस तरीके से वो पैरेलल सर्विस रह सकते और उसका अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज होगा या एक्स्ट्रा कुछ पे करना होगा या जो प्रोसीजर होगा उनको बताया जाएगा तो वो उस बिहाफ में उस प्रोसीजर को करने के लिए रेडी है. इस तरीके का एक रिक्वेस्ट लेटर हमने देखा. नेक्स्ट हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कैसे एक करस्पॉन्डेंस करना चाहिए ये देखा. सो डमडम स्टोर के जो ओनर है, बुक स्टोर के ओनर, वो हर साल जो है एज अ बुक स्टोर वो रख रहे, इसीलिए हर साल वो इनकम टैक्स तो रेगुलरली पे करते आ रहे. सो उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किया, उन्होंने एक पोर्शन ऑफ मिस्टेक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उन्हें एक डिमांड नोटिस आया है कि उतना अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स उन्हें इस साल पे करना है, बट उन्होंने ऑलरेडी वो अमाउंट पे कर दिया है जो उनका जो इनकम है उस हिसाब से उन्होंने इनकम टैक्स तो पे कर दिया है, बट फिर भी डिमांड नोटिस आया. इसीलिए वो अपना पान कार्ड और उन्होंने जो इनकम टैक्स 2015 और 16 में पे किया था उसका एक कॉपी अटैच करके कह रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी हर साल वो पे कर रहे हैं, इस साल का भी उन्होंने पे कर दिया. जितना उनको नोटिस दिया गया उससे उनका कम इनकम था, इसलिए उनके इनकम के हिसाब से जो होता है उन्होंने वो पे कर दिया. वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि फर्दर उसके ऊपर एक री रेफरेंस देखा जाए, उनकी पैन कार्ड नंबर वो मेंशन करते ताकि उनको शॉर्टली सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए. सो इस तरीके से एक रिक्वेस्ट लेटर जो एक कंप्लेंट लेटर होना चाहिए बट वो एक रिक्वेस्ट लेटर की तरह रिक्वेस्ट करते कि उनका डिमांड नोटिस जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए. नेक्स्ट हमने देखा है कि एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए एक कंपनी अप्लाई कर रहा है. सो बुक और नोटबुक प्रिंटिंग करने वाला जो एक कंपनी है वो मशीनरी बनाते, तो उस मशीनरी को ऑलरेडी वो सक्सेसफुली सेल कर रहे, बट उनकी जो मशीनरीज है आजकल फॉरेन में डिमांडेबल देखा जा रहा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि अपनी जो मशीनरीज है वो फॉरेन में भी बेचे. बट एज पर द रूल आपको पता है लीगली आपको सबसे पहले एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जाके आप फॉरेन में कोई भी चीजें बेच सकते हो. इसीलिए वो ट्रेडर जो है और मशीनरी बनाने वाला जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर वो रिक्वेस्ट करता है फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट से उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इस बिजनेसमैन को बताया उस हिसाब से 50 रुपीज का स्टैंप, उनकी कंपनी के एड्रेस का, 10 रुपीज का बैंक के एड्रेस का, फिर सेल्फ अटैचमेंट ऑफ द पान कार्ड, फिर एक फोटोकॉपी, बैंक की स्टेटमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म और अदर डॉक्यूमेंट्स जो मंगाए गए थे, ये सारे चीजों को वो लेटर के साथ अटैच करके भेज रहे हैं. सो इसी कोड के हिसाब से, कोड 1 के हिसाब से उन्हें प्रॉम्प्टली जल्द से जल्द लाइसेंस दिया जाए ताकि वो एक्सपोर्ट का बिजनेस अपने मशीनरी का शुरू करवा पाए. सो इस तरीके से प्रॉपर वे में किस तरीके से हम एक लेटर लिख सकते हैं उसका एक एग्जाम्पल हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया. यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज गेटिंग कंप्लीटेड. सो नेक्स्ट पोर्शन से हम पब्लिक यूटिलिटी की करस्पॉन्डेंस के बारे में डिटेल में देखेंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर. Rather than that, I hope that today's video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.